रमजान में नहीं होने वाली चीज। क्लियर करूँ, लाइक मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मुझे जीरो सपोर्ट था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट। नाम तो बताना पड़ेगा। आज जो है हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो गेस्ट हमारी मौजूद हैं, उनका एक्सपोजर, उनकी चीज़ें, उनकी जर्नी आज हम शेयर करने वाले हैं। और उससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो बताइएगा। बगैर किसी देर के मैं बुलाता हूँ हमारी बहुत प्यारी दोस्त जोया जैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। क्या हो रहा है और कैसी हैं आप, ये बताएं। Alhamdulillah, I'm fine. You tell me, how's you and how's the podcast? Seems to be really, really nice and different from the other podcast. It's going well. I'm very thankful the people like you joining and sharing your journey, your experience, your exposure to our people. ये बताएं जोया, जो मेरा पहला सवाल है आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जोया जैन या जोया अल्ताफ कौन है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? For I'm a very different person for every person. If you ask me what I am, I'm an entrepreneur and I love trying new businesses. I like whenever there's something in my mind, I should give a chance. ताकि बाद में life में regret you काश कर लेती, काश वो मैं कर लेती. So yeah, I'm like you can say experimental person, and I love trying new things, meeting new people. So yeah. कितनी न्यू थिंग्स आप ट्राई कर चुकी हैं और क्या कर रही हैं आजकल? आजकल भी कुछ नया ट्राई कर रही हूँ. I've like recently opened up my business in UAE and exploring this new market because I have done business in Pakistan, Turkey and UAE something really really new. And like जब मैं सोचती थी कि मैं UAE में business करूंगी तो वो कहती नहीं यार, this is like really really fast, but I don't know what I'm doing here. Again experimenting. आजकल कौन सा काम चल रहा है और क्या सोच रही हैं आजकल, ये बताएं। क्या सोच रही हूँ? Actually, I do event management, and that's the core business. You can say this is the cash cow of my business. And from this business, I'd like experiment, do other things. Like I've recently opened up a motel budgeted accommodation, and I plan to expand this all around the world. So that's the second thing I'm doing. पहला जो है that is event management. That is my core business, and that I'm doing since last 9 years. जैसे आपने अभी बताया कि जो आपका कोर बिजनेस है वो इवेंट मैनेजमेंट का है, उसके बारे में बताएं कि कितना टाइम हो गया, कैसे स्टार्ट किया, कैसा चल रहा है वो काम? सो वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने जिस तरह स्टार्ट किया है, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करूंगी. प्रोफेशनली आई एम अ सीआई में क्वालिफाइड. आई एम अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. सो आई वाज वर्किंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बिफोर. So one fine day, like when I was in a pharmaceutical company, I realized, oh my god, I don't belong here. This is something I actually enjoy. So without telling my parents, I just left my job and I've just moved to a co-working space. और वहां पे मैंने like started working on my startup idea. 4-5 महीने में अपने स्टार्टअप पे दैट द इनिशियल बिजनेस आइडिया फॉर वेडिंग, लाइक किसी को अगर वेडिंग से रिलेटेड सप्लायर्स चाहिए या कुछ चीजें चाहिए, वो ऑनलाइन कर सकता है. बट सिंस इट वाज सच अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट 9 years back, डिजिटली कोई शादी का वेन्यू सलोन कोई बुक नहीं करता. So I realized event management people want a very customized touch. And from there onward, I switched my business idea from a online digital platform to something like very customized, that is called like event management. Since like wedding is something close to everyone's heart, लाइफ में एक ही दफा होती है मोस्टली. Yes, yes. दो दफा भी होती है वैसे, लेकिन मोस्टली एक ही दफा लोग जोरों शोरों से मनाते हैं. So उसमें they want someone who can they actually trust, and they want someone जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम और चीजें शेयर कर सकते. So yeah, so it's like almost 9 years of wedding planning, event management, corporate events as well. So that's my core business, and like I have never planned to do this, but पता नहीं कैसे कर लिया और करती जा रही हूँ. आई बिलीव दैट इट वाज अ हार्ड वर्क। ये बताएं जोया कि इतनी एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन्स के अंदर हमें नहीं मिलती है। अर्ली चैलेंजेस आए हों जिसमें आपने गिव अप का सोचा हो, आपको डिफिकल्टीज हुई हों, मेंस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, तो आप कैसे देखती हैं इस चीज को? No, not really. I guess entrepreneurship is not about the gender. It is more about your passion, because I know a lot of guys, like, even though they have all the resources, they have everything, but they don't have guts. So it's about like risking yourself. अच्छा, मुझे लगता है entrepreneurship में फीमेल या मेल से ज्यादा मुझे लगता है कि at what age you're planning to quit your job and start
entrepreneurship journey, because of like someone plans to start their entrepreneurship journey at the age of 40, there's like a lot of risk, there's like so much guys अगर वो सोचते हैं 30 साल की उम्र में आके कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, so there's like so much at stake, because like as a guy like one have a lot of responsibility and it's not easy कि आप stable income को छोड़ के एक नया start कर सके. Similarly for female, like by the age of 30, female are usually married and like they have a lot of responsibility to start a business. I started my journey, I was 21, so there was nothing to lose. My point is, since at that point of time मेरे पास कुछ lose करने के लिए था नहीं, like my house was stable, मतलब my family was like I was doing my thing, because like I had like no responsibility, and like मैंने कहा चल गया तो चल गया, नहीं चला तो शादी करनी है कर लूंगी. चल वो क्यों क्या बोलते हैं, चल गया तो शाम तक, नहीं चला तो रात तक. आई डोंट नो हाउ दे से लाइक दैट. एनीवेज, अब जो टाइम चल रहा है, आप क्या देखती जो खवातीन हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही हैं? क्या हम इस बारे में पढ़ा रहे हैं? कैसे इस चीज को हम Entrepreneurship पढ़ाई नहीं जा सकती किसी को भी. It's like it's come really from you, and apart from this, no woman. The problem is this. I might sound really rude, but मुझे लगता है कि जो फीमेल है ना खुद करना ही नहीं चाहती entrepreneurship. They don't like want to do it. If they want to do it, they will do it. मतलब लेकिन ये यहाँ पे मेरा आपसे एक आर्गुमेंट ये बनता है कि ये भी तो पॉसिबल है कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके पास थी. क्या अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं? सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. ऐसी कंडीशन में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो ऐसी खवातीन हैं, जो ऐसी लड़कियां हैं जो वर्कआउट करना चाहती हैं लेकिन वो इस डोमेन में जो है वो स्टक हैं कि सपोर्ट में, और थोड़ी सी कि वो कैसे इस चीज को बैलेंस करें, उसके उनको आप क्या मैसेज देंगे? पहले सलमान, पहले तो मैं क्लियर करूं, लाइक मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मुझे जीरो सपोर्ट था. मेरे पेरेंट्स मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं घर से मैं बता के जाती थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैं एक कोवर्किंग स्पेस करती थी. सो यू नीड टू बी रिजिलियंट. कभी कभी आपको खुद, मतलब मैं किसी को मुखालिफत नहीं करती, बट लाइक द बिगेस्ट सपोर्ट इज योर ओन सेल्फ. बहुत सारे लाइफ के ऐसे स्टेजेस हैं आपको नहीं मिलता सपोर्ट, बट यू इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस टू योर ओन सेल्फ. समटाइम हम लाइफ में अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि यार ये नहीं करा बिकॉज ये वजह है. You need to take control of your life if you really want to do something big in your life. So yeah, that's my message. वेरी गुड. आई थिंक दैट मेक्स सेंस कि आपको अप एंड बियॉन्ड जाना पड़ता है अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं. तो आई टोटली एग्री विथ यू. हर चीज प्लेट तो सॉरी, हर चीज प्लेट में नहीं मिलता, so you need to work hard. या एग्जैक्टली. आप इस बात पे बिलीव रखती हैं कि कोई भी चीज अगर, क्योंकि अमूमन मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ है और वो कुछ जाता है, तो क्या उसमें सक्सेस मिल जाती है आसानी से? मुझे लगता है if you work hard भी आप कर लो, लाइफ में आप मेहनत करो ना तो वो आप हासिल. बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट मेरे खानदान में किसी ने शायद किसी वेडिंग प्लानर को कभी जिंदगी में हायर नहीं किया होगा, एंड आई हैव एंडेड बिकमिंग वन. और वो भी नहीं, हमें इंटरनेशनल इवेंट प्लानर का मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था. आई एम डिस्टिंक्शन होल्डर, मतलब केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइक आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, और मैं क्या कर रही हूँ लाइक लिटरली. सो इट वाज डेस्टिनी, दिस वाज माय डेस्टिनी, एंड लाइक start getting money now, so you cannot take a step back. It's अच्छा चल रहा है, like in the end we all going for this, so तो चलो चल ही रहा है. So yeah. वेरी नाइस. जैसे भी आपने बताया कि आप टर्की में भी रही हैं, दुबई में भी रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं और क्या एक्सपोजर आपको मिला? क्या वाकई ये जो बात लोग कहते हैं कि इफ यू लिव इन अ वन कंट्री यू जस्ट रीड द वन चैप्टर ऑफ द बुक, द रेस्ट इज द रिमेनिंग, तो क्या ये बात सच है? Absolutely. If you have option of buying an iPhone and traveling the world, traveling the country, go travel the world. When you meet people, you learn a lot. You see how humans behave. Because, for example, the reason I chose Istanbul because it was a multicultural time. When I moved to Istanbul, it was the time when a lot of foreigners were moving to Turkey. The type of exposure I got was amazingly good. I learned a new language. I learned how people behave, how their body changes in a certain way. And इसके अलावा आपको समझ में आता है human, every culture, every person, every country has certain traits. मतलब वो they behave in a certain way. They have some. आपको चीजें समझ में आती कि हर किसी को किस तरह टैकल किया जा सकता है. अब like for example, if I meet a Pakistani, I know like how to close a deal because
उसके सारे behaviors मुझे पता है. Like when I talk to a French person, I know that person cannot be tackled in a very similar way because they are blunt. They're like not meaty zaban wale, like they use correct words to make sure that the other person is not offended. Whereas like if you talk about French people, they don't care. They are like very blunt and open. जो दिल में वो मुंह पे. So yeah, like when you go out, meet people, आप जब nature के पास जाते हो, you see your own reflection, you understand your own self, like why things are the way they are. क्या इस्तांबुल में ऐसा हुआ कि आपका चेक बाउंस हो गया हो? हैं? नहीं. अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस आपका वहां नहीं हुआ है, नहीं. लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो जरूर हुआ होगा। हाँ यार, मत पूछो. यहाँ से बात निकली है तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के चेक बाउंस हो जाते हैं और आपको बड़ा इसका क्या इम्पैक्ट आता है काम पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है। हम बैंक ट्रांसफर करवाते रहते, पैसे अभी भी ट्रांसफर करो वरना इवेंट रोक देंगे हम आपका. हाँ, आपके पास तो ये लेवरेज है कि आप इवेंट रोक सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या बताएंगी या क्या बोलेंगी? हम खाना ओपन नहीं करते, अभी कहते हैं पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे. हाँ, खाना जो आप शादी कर लें, लेकिन आप खाना नहीं खाएं, आप खाना घर जाके खाएं, आप शादी कर लें। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि किस किस के साथ ऐसा होता है और कौन कौन चीज़ से परेशान है कि आपके चेक बाउंस हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं जोया कि इसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आता है और क्या इम्पैक्ट आता है? छोटा बिजनेस है या जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, क्या उनको आप क्या एक मोटिवेशन देंगे या क्या मैसेज देंगे? Depend part of the world like Pakistan, like entrepreneurs know that it is not possible कि आप ये चेक पे काम कर लो because चेक वो एक strong वो नहीं है and like one in fact Pakistan नहीं, in fact Dubai as well, like I live here, तो यहाँ पे भी like people prefer to have bank transfer because आप event हो गया, चीजें हो गई, you cannot chase after people, it gets really difficult. So it's better कि आप like you either have cash dealing or bank transfer, it's everywhere. Yeah. ना, ये तो है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वाकई इसका इम्पैक्ट तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत पड़ता होगा। टर्की आप कितना टाइम रही है वहाँ पे? 2 years. 2 इयर्स। और अब आगे के क्या गोल हैं 2024 में, 25 में? आगे आप क्या समझती हैं, कहाँ जाना है? अभी तो फिलहाल यूएई में रहना है, the entire, I want to be the queen of entire GCC, capture the entire GCC. So yeah, this उसकी क्या वजूहात हैं? ऐसा ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? इसलिए ऐसा सोच रही हूँ कि this is the time for GCC. जितनी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है फिलहाल, सारी दुनिया like everyone like property is growing, a lot of investment, foreign investment is coming in, the growth. इसके अलावा it's a multicultural country, you're close to your religion as well, you get to hear us 5 times a day. So yeah, like everything, it's the good part about UAE or entire GCC is just like it's a balance of East and West. So I guess it's good. Time like you come here, like you find something new. It's not like every day they're doing something new with the world, with the changing world. क्या इतनी ट्रैवलिंग से और इतने काम से पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है? Traveling say personal life depends like okay, who is your partner? And like if your partner loves, so yeah, why not? Yeah, and like now the concept digital like everything is on our laptop. The entire office is on our laptop. So I guess now things have changed. You don't need office space to work. You just need a laptop. You can work from your vacation. You can work from home. You can work from wherever you want with your convenience. So the concept of going to office has been changed. Now like everything is virtual. We're not like not physically meeting each other, but like virtually we're together. So I guess now the concept of physical office everything has changed. After the COVID, I think it also boost up the virtual office, virtual meetings, virtual everything. So you cannot replace that with human presence because you need that socializing thing. Face to face impact is very different. Meeting someone like face to face and someone virtually, it's like a lot different. Like me, I'm virtually inviting everyone in the podcast, but soon it's gonna be physical as well. Thank you so much for defining all the information with us. अब जो है वो हमारा टाइम हुआ है गेम सेक्शन का। इसमें हम खेलेंगे गेम और गेम का नाम है आधा अधूरा करो पूरा। बेसिकली इस गेम का मकसद ये है कि एक तस्वीर आपके सामने आएगी
और उसमें एक सेंटेंस मैं बोलूंगा, सेंटेंस बोल सकता हूँ, वर्ड बोल सकता हूँ, उसको कंप्लीट आपने करना है। और इसका मकसद ये है कि एक से ज्यादा लोग मिलके कोई भी चीज को पूरा कर सकते हैं। तो जिंदगी में अगर कोई भी कहीं अटका हुआ है तो वो किसी को हेल्प करके या किसी का सहारा लेके उस चीज को आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने आ गई। मैं जो है उसको लेके बोलूंगा सुकून की जगह। सुकून घर। सुकून घर। वेरी नाइस। दूसरी तस्वीर, यहाँ पहुंचना चाहते हैं बहुत सारे लोग। माउंट एवरेस्ट। थैंक यू। रमजान में महंगी होने वाली चीजें, आई जस्ट लव इट। चाहे वो महंगी भी क्यों ना हो जाए। हाँ, आई लव इट। चौथी तस्वीर आपके सामने, चलते रहो। जिंदगी का नाम ही ये है। वेरी नाइस। वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर, द फिफ्थ वन। कुछ यादें बस यादें रह जाती हैं। बातें याद आती है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत मजा आया इस गेम का। नेक्स्ट सेक्शन में हम बढ़ते हैं अपने कुछ सवालों की तरफ। कुछ सवाल मेरे आपसे ये हैं कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा है या करना चाहता है कि वो सोच रहा है कि यार मैं टर्की जाऊं या मैं दुबई जाऊं बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, तो आप क्या समझती हैं, दोनों का कंपैरिजन है नहीं है, आप क्या सजेशन देंगी? टर्की में तो जॉब मिलना ना ही मुमकिन है, क्योंकि लाइक टर्की itself they have like very very high population, तो वहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी इज लाइक वेरी लेस, बिकॉज मुझे लगता है जिस मुल्क में उनकी अपनी आबादी है, तो दे डोंट प्रेफर टू हायर इमिग्रेंट्स, व्हेयरएज वेरी वेरी हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे जॉब तो मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा। यूएई इज टू लिव, तो रिकमेंड नहीं करती कि आपके पास जॉब नहीं है, आप सेविंग लेके इधर आ जाए, सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। और टर्की में बिना लैंग्वेज के लिए आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर किसी को इंग्लिश नहीं आती, ना उर्दू आती है, ना हिंदी आती है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो मतलब कोई भी शख्स दोनों जगहों में से कहीं भी ना जाए। यू मतलब टर्की समथिंग, आप मतलब रहने के लिए तो अमेजिंग है। अगर आपको रिटायरमेंट प्लान है आपका, आप 60 के हैव सो मच मनी, तो आप जाएं वहां पे, आप लाइक कॉटेज ले। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग पैसा कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं ना, लेके थोड़ी जाना चाह रहे पैसे कमाने के लिए इस टर्की इज नॉट अ प्लेस, बिकॉज इट्स अ वेरी डेटेड कंट्री। अभी हर चीज में बहुत इन्फ्लेशन हुई है, तो आई विल नॉट रिकमेंड। हैं। जैसे ये एक बात ये भी मैं बहुत सुनता हूँ, और ये बड़ा एक ट्रेंड आपको भी शायद पता होगा कि ये एक बहुत ट्रेंड रहा है कि 3 महीने का वीजा लो और दुबई जाओ और आप करोड़पति बन के वापस आ जाओ। क्या ये इतना आसान है? आई गेस इट वाज पॉसिबल 20-30 years, नाउ इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे हर दुनिया का बंदा मौजूद है, पीपल फ्रॉम कनाडा, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवेयर इट्स अ मार्केट। यहाँ पे दुनिया की 156 कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं। इट्स अ वेरी हाई, मतलब अगर आपके पास, अगर आप इतनी केपेबल हो, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, तो व्हाई नॉट। अच्छा, मतलब ये पॉसिबल है कि आप 3 महीने का वीजा ला के करोड़पति बन सकते हैं? करोड़पति डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन 3 महीने में तो करोड़पति नहीं बन सकते इधर। ये सवाल मैंने इस वजह से पूछा है क्योंकि काफी लड़कों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके साथ स्कैम भी हुआ है, और जो असल में बाहर होते हैं वो दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और होता कुछ है। तो जो ओरिजिनल जो लड़के सेविंग्स लेकर और उसमें अप्लाई करते हैं 3 महीने का वीजा, उनको आप क्या ऐसा सजेशन देंगे कि वो स्कैम से बच सकें? सारी स्पेशली लेबर जॉब के लिए मैंने वो देखा है, बहुत स्कैम्स होते हुए। वो कहते हैं आपको जॉब मिल गई, या 5 लाख रुपए भेजते हैं, 6 लाख रुपए भेजते हैं, और वो ऐसे ट्रैवल एजेंट भाग जाते हैं झूठा जॉब। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्या की फैक्टर्स है जिनको वो मद्देनजर रखें अगर कोई आना चाहता है? जाहिर है कि वो अगर किसी ने डिसीजन लिया तो वो आएगा, तो ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं? मतलब अब डिपेंड करता है कि कौन आना चाहता है। अगर एक लेबर क्लास है तो द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। अगर कोई मतलब पढ़ा लिखा बंदा है, तो मतलब अगर जॉब की नीयत से आइडियली तो उसको उस सिचुएशन में आना चाहिए जब आपको जॉब का आपके पास लेटर हो, या फिर आपका इंटरव्यू हो गया, इधर स्टाइप, और जो आपके जानने वाले एटलीस्ट वो चेक कर लेंगे ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाए, तो ये सारे पैसे लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल होटल का जो अकोमोडेशन है 200-300 का, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज से इसको मल्टीप्लाई करें, 22,000 से 25,000 रुपए एक दिन का, अब यू कैन, तो मतलब 10-12 दिन में तो आपके पैसे मतलब 2.5-3 लाख तो यूं चले गए। फिर इसके अलावा ट्रैवलिंग इज रियली रियली एक्सपेंसिव। आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, वो टैक्सी वाला वो मीटर चला देगा। अब नॉर्मल आप एयरपोर्ट से जब नॉर्मल बड़ दुबई में जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं, 50 से 60 dirham लग जाएंगे, जो पाकिस्तानी 4-4,500 रुपए होते हैं। तो
लाइक दिस इज लाइक बेसिक मैथ्स, मतलब अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए रखे हुए हैं और आपने सोचा कि बस अब जाया करने तो फिर निकल जाओ दुबई की ट्रिप पे। हाँ, ये तो है, इन चीज़ों को बंदा थोड़ा-सा सामने रखे। अच्छा ज़ोया, ये बताएँ एज़ अ वर्किंग वुमन, क्या आपको ऐसे भी लोग मिले हैं जो छेड़ा-छाड़ी करते हों, मुश्किलात पेश आती हों आपके सामने? छेड़छाड़ी नहीं, मुझे कोई छेड़छाड़ी कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? आप लड़की नहीं हैं? बट लाइक एज अ, लाइक यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, आपको समझ में आता है लाइक विच गाय इज हिटिंग ऑन यू, सो यू नो हाउ टू नो कि कैसे कट ऑफ करना है, कैसे टटाना है, तो आपको समझ में आ जाता है। तभी आप टर्की ऐसे खूबसूरत लोगों में जाके बैठ गई और अब दुबई चले गई, ताकि ऐसा कोई छेड़ा-छाड़ी हो ही ना। हाँ, छेड़ें, खूबसूरत लोग छेड़ें, ऐसे ना छेड़ें। टर्की में हर कोई किसी को देखता ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ यूएई में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े खूबसूरत लोग कम मिल जाए। कोई वाकया हमें बताएं कि कभी शादी में ऐसा हुआ हो कि दूल्हे की शादी हो और उसने आपको अप्रोच कर लिया और अपनी शादी छोड़ दिया, कोई ऐसा वाकया हमें बताएं जो आपकी जिंदगी में आपको याद रह गया हो। एक्चुअली एक मेरे साथ बैड पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से लाइक आई फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस, एंड आई गेस दिस इंटायर फियास्को मेड मी वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब मेरी मतलब मुझे पता ही था अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद आई रियलाइज आई एम बिगर देन ऑल दोज थिंग्स। तो एक पार्टनरशिप थी जो जो जिसने किसी पार्टनरशिप में बैक ऑफ कर दिया, एंड लाइक आई आई एंड अप पेइंग द इंटायर लॉसेस। तो वो लॉसेस, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़ा लॉस मुझे अकेले बियर करना पड़ा, बट आई गेस दैट सिनेरियो, दैट इंसिडेंट हैव मेड मी वेरी स्ट्रांग। एंड आई गेस मैं कहती हूँ कि चलो ये हो गया बिकॉज मुझे अपनी कैपेबिलिटी दिया। आई वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस इन 1 year। मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कैसे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, बिकॉज माई वर लाइक पॉजिटिव। तो या आई गेस हर किसी के, बंदा जितना फेलियर से सीखता है ना उतना सक्सेस से नहीं सीखता। आई गेस हमें फेलियर्स को पॉजिटिव, बिकॉज सक्सेस से सिर्फ दिमाग खराब होता है, फेलियर से बंदा एक्चुअली चीजें सीखता है। वेरी वेल सेड जोया, थैंक यू सो मच। अब हमारे शो का जो है वो अख्ताम हो रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक गुड बाय नोट हमारी ऑडियंस के लिए दें और उन्हें ये बताएं, कोई भी सेंटेंस उनके लिए आप बोलें। और कोई मोटिवेशन हो सकती है, कोई 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 परेशान है वहाँ, कोई सोच रहा है काम के लिए, कोई सोच रहा होगा जाने के लिए, कोई सोच रहा होगा आने के लिए, तो उन सबको आप एक गुड बाय नोट हमारी तरफ से ज़रूर दें। तो लाइफ इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, जो भी हो ना, तो जस्ट एक्सेप्ट विद अ स्माइल। बुरा हो तो खुश हो, अच्छा हो तो खुश हो, आ, जो आप चाहते हो वो हो उसमें भी खुश हो। सो आई गेस लाइफ को वी शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। समटाइम वी टेक लाइफ वेरी सीरियसली, वी शुड नॉट, बिकॉज जो होना है वो ही होगा। Wow, very good. Thank you so much. That's very well said. And I again thank you so much for joining us today and giving us your precious time. थैंक यू, बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। दुआओं में याद रखें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।